यस, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था बायोट-सवार्ट्स लॉ, राइट, which tells us simply that the magnetic induction due to a current carrying conductor is directly proportional to the current flowing through it. Also, it depends on the length of that element of the conductor, and also it depends on the sign of angle between the line joining the center of element with the point where magnetic induction is to be found out and conductor. Okay, in which the direction of a current is flowing. Okay, or and also it is inversely it depends upon the square of the distance between the center of element and the point where the magnetic induction is to be found out. बराबर, तो ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी थी इसके अंदर बायोट-सवार्ट्स लॉ के अंदर। और बायोट-सवार्ट्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म भी हमने देखा था। और वेक्टर फॉर्म के अंदर हमको ये पता चला कि अकॉर्डिंग टू द बायोट-सवार्ट्स लॉ, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन is always perpendicular to the two things. One is the conductor itself, and the second is the line joining the center of element and point where magnetic induction is to be found out. Correct? So means it is given already, always it's given by cross product. तो क्रॉस प्रोडक्ट से वो दिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी फाउंड आउट by using the cross product of R dl बार क्रॉस r बार। तो dl बार क्रॉस r बार वहां पे उसके अंदर आना चाहिए। तो db बार which is the magnetic induction in vector form is going to be equal to mu naught upon 4 pi into I into dl bar cross r bar upon r cube. If you don't want r cube in the denominator, then we will have to take that r cap। ठीक है, ऊपर में जो है न्यूमरेटर में हमको r cap लेना पड़ेगा, तब फिर जाके नीचे वहां पे r cube लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने कल के लेक्चर में देखी थी। तो अभी आज के लेक्चर में हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, सो राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, applications of Biot-Savart's law. Okay, so just for revision purpose, we'll see what we have seen last time. So see, ये हमने देखा था कल के लेक्चर में। Yes. Okay, so we have seen like that. So the vector form of Biot-Savart's law, which tells us simply that the magnetic induction due to a current carrying element is always equal to mu naught upon 4 pi into I into dl bar cross r bar upon r cube. If we don't want r cube in the denominator, then we'll have to take it as r square as it is, but then r bar has to be replaced by r cap, then it's okay. So we can say this will be the Biot-Savart's law, no doubt. चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इन दिस चैप्टर इज अबाउट द yes, it is going to be the applications of Biot-Savart's law. See here, what are the applications of Biot-Savart's law? We'll see now. So basically there are 3 to 4 applications we have to study in this chapter in your syllabus. So उसमें सबसे पहला जो है तो वो है the magnetic induction due to a circular current carrying conductor. अब ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा आगे है, बट चलो हम पहले कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है समझने के लिए, so we can understand it very easily. See, we want to find out the magnetic induction at the center of a circular current carrying coil. ओके, देखो ठीक से, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल अगर हमारे पास है और उसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन हमको ढूंढना है,
So consider a circular current carrying coil like this. Okay, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, सपोज इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, देखो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आई इतना करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में पूरे कॉइल में से। अभी चलो ठीक है, ये हम समझ सकते हैं कि कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है और जरूर वो करंट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटर करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लीव भी तो करेगा, है कि नहीं? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ब्रेक दे सकते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं कि द करंट विल बी, या यहाँ पे ब्रेक दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि करंट विल बी लीविंग एंड इंटरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट हियर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे करंट जो है वो इस तरह से इधर से एंटर करेगा यहाँ पे, फिर इधर पूरा सर्कुलेट होगा कॉइल के अंदर से, पूरा इस तरह से सर्कुलेट करेगा और फिर यहाँ से लीव करेगा, नो डाउट, तो इधर से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बट जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है नो डाउट, बट अब ये जस्ट फॉर थियोरेटिकल पर्पज, थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द करंट इज जस्ट गेटिंग सर्कुलेटेड अलोंग दिस कॉइल। तो यहाँ पे जो है करंट जो है तो वो इस कॉइल के अंदर से इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, no need to give any break here, and current is continuously flowing in this way in a circular manner like this। ऐसा हम assume कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगर हमने ऐसा assume किया तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है ये हमको ढूंढ के निकालना है। समझा ठीक से? what we have to find out here is we want to find out the magnetic induction at this center, so we'll have to apply the Biot-Savart's law to find out the magnetic induction at this center here। बट बायोट-सवार्ट्स लॉ यूज करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि बायोट-सवार्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्मॉल एलिमेंट। रिमेंबर, एक छोटे एलिमेंट के लिए ही बायोट-सवार्ट्स लॉ एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए हमको छोटा एलिमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा कॉइल है तो वो कोई छोटा एलिमेंट तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे कॉइल को हमको बांटना पड़ेगा, ठीक है, बांटना पड़ेगा ये छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, तो ऐसे टुकड़े के अंदर उनको उनको बांटना पड़ेगा इस पूरे कॉइल को। एंड देन वी विल हैव टू कंसीडर द वन सच एलिमेंट एंड अप्लाई द बायोट-सवार्ट्स लॉ ऑन इट एंड consider the contribution in that magnetic induction of each and every element like that। देखो, in general what Biot-Savart's law tells us is simply, देखो अगर समझो ये एक, मान लो ये है एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की वजह से अगर यहाँ पे I इतना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है और DL इतना लेंथ का वो एलिमेंट है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना पैदा होता है, अगर ये डिस्टेंस हमने बोल दिया R है, तो उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है, ये हमारा फॉर्मूला है वेयर थीटा इज गोइंग टू बी दिस एंगल हियर। ये जो एंगल बनता है कि नहीं, इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसमें और ये जो आर बार है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल एक्चुअली थीटा रहने वाला है, और उस थीटा का साइन हमको यहाँ पे लेना होता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे ये जो है दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर बायोट-सवार्ट्स लॉ फॉर अ स्मॉल एलिमेंट। एक्चुअली ये एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो कि दूसरा एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे ऐसा एक दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, समझो ये ऐसा एक एलिमेंट है, तो उस केस में इसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा तो वो निकालने के लिए हमको इसका सेंटर जो है उसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस एलिमेंट का लेंथ dl2 सपोज है और इसमें से I2 इतना करंट फ्लो हो रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो R2 है, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक ये जो एंगल है वो θ2 हो सकता है। तो उस केस में इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है B2 उसको हम बोल सकते हैं। तो दैट विल बी गिवन एक्चुअली बाय अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into, here it is I2 into dl2 into sin θ2 upon r2 square। तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, ये दूसरे एलिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर का वो हमने कंसिडर किया, और सेम वैसा ही हम अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अगर कंडक्टर है तो उस केस में हमको ये पूरे कंडक्टर को ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना पड़ेगा एंड वी हैव टू कंसीडर वन एलिमेंट एट अ टाइम। ये एलिमेंट समझो हमने कंसीडर किया इधर से इधर तक का, उसका लेंथ अगर मान लिया dl3, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर मान लिया I3, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को अगर मान लिया R3,
तो यही फॉर्मूला हमको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा इस एलिमेंट के लिए भी, जिसके अंदर डीएल अलग होगा, मतलब ये जो लेंथ है एलिमेंट का वो अलग होगा, फिर यहाँ पे थीटा भी अलग होगा और आई भी अलग होगा और आर भी अलग होगा। तो उसकी वजह से उस एलिमेंट का जो मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर का जो कंट्रीब्यूशन है तो वो हमको मिल जाएगा। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन निकाल निकाल के हमको ऐड करना होगा, तब जाके हमको टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर का। ओके, so this is the strategy to apply the Biot-Savart's law in any complicated situation. You have to understand. And not only the magnitude, we all have to consider the direction of magnetic induction also. तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन का जो है डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ता है, बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे हम उसको अप्लाई करेंगे। तो देखो दिस एलिमेंट, दिस कॉइल, सर्कुलर कॉइल whose radius is going to be r, suppose इस रेडियस को हम बोल देंगे r, चलेगा ना? r is the radius of this coil. So this coil can be considered to be made up of large number of elements. अच्छा, ऐसा करते हैं, कॉइल को ना हम थोड़ा थिन पेन से ड्रॉ करेंगे। चलो देखो, ये सपोज ऐसा कॉइल है, दिस इज द सर्कुलर कॉइल, ओके, एंड दिस इज द सेंटर, suppose we can call it as O, okay, and we can consider the coil to be made up of large number of elements like this. तो देखो यहाँ पे मैं अभी ये जो एलिमेंट्स है तो उन एलिमेंट्स को थोड़ा अलग कलर से एक्सप्रेस करता हूँ, येलो कलर से वो दिखा रहा हूँ। तो देखो ये सपोज एक एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एलिमेंट, इसको हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे चौथा एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का जो लेंथ है उसको हम बोल सकते हैं डीएल होगा, और हर एक एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अलग होगा, हर एक एलिमेंट का जो एंगल बना हुआ अलग होगा। और ऐसे हर एक एलिमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई द बायोट-सावर्ट्स लॉ एट दिस एलिमेंट, and suppose this element is of length dl, okay, and suppose that the it is at a distance r from this origin. ये जो सेंटर है यहाँ से r डिस्टेंस पे वो एलिमेंट है। और समझो कि यहाँ पे करंट जो है, इस पूरे कॉइल के अंदर जो करंट जा रहा है, तो वो करंट अगर मान लो, चलो कौन से डायरेक्शन में करंट एज्यूम करने का तुम बताओ, तुम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, अगर हम सपोज ऐसा एज्यूम करते हैं कि करंट जो है, current will be in the anti-clockwise direction like this. I will be the current flowing through this whole conductor or this whole coil in the anti-clockwise direction. Okay. तो वही करंट इस एलिमेंट के अंदर भी तो जाएगा कि नहीं? जरूर, ऑब्वियसली इसी एलिमेंट के अंदर भी तो उतना ही करंट जाएगा, और वो भी लेफ्ट टू राइट ऐसे डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे इस एलिमेंट में ऐसे डायरेक्शन में करंट जाएगा जरूर, और वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई है। चलो ठीक है, अभी ये सोचो कि अगर इस छोटे एलिमेंट के ऊपर अगर फोकस करते हो और उसके ऊपर अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करते हो, तो इस एलिमेंट के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे बनता है उसको हम नाम दे देंगे dB. यू कैन से द मैग्नेटिक इंडक्शन at point P or at point O due to the element at A, ठीक है। A मतलब ये पॉइंट, ठीक है, इसको बोल देंगे A, चलेगा ना? तो अभी इस A पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन इस पॉइंट के पे बनता है, तो वो कैसे हमको मिलेगा? तो हमारे पास उसके लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ है। सो dB, उसका मैग्नीट्यूड जो है, तो dB कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एलिमेंट। जो पूरे कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है वही एलिमेंट में से भी फ्लो होगा जरूर, बिल्कुल, into dl, that is the length of that element, into sine of angle theta, where theta is going to be the angle between the element and the distance, तो which is going to be 90 actually। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है कि नहीं, और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि देखो जब हम एलिमेंट चेंज करेंगे, सपोज एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये r बनेगा, तो उनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल रहेगा, बिल्कुल। अगर यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ये एलिमेंट अगर कंसिडर करते हो, तो ये जो r बनेगा और इन दोनों के बीच में एंगल फिर से 90 डिग्री रहेगा।
और वो हमेशा ही रहेगा, हर एलिमेंट के लिए वैसा ही होगा, और इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 90 डाल सकते हैं हर एक एलिमेंट के लिए 90। नहीं तो चलो फिलहाल थीटा डाल देंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि सिंस थीटा इज 90 sin थीटा इज गोइंग टू बी 1। ओके, तो और दैट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर माना क्या होता है बार्ट्स-वॉर्ट्स लॉ में? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक इंडक्शन इज टू बी फाउंड आउट। तो उनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? ये डिस्टेंस आर ही है, बिल्कुल। अभी ये कोइंसिडेंस है यहाँ पे कि आर इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द कॉइल ऑल्सो, एंड आर इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ दैट point P where magnetic induction is to be found out from the center of element also, and that's why you can call it as R। तो वैसे भी R अगर उसको बोलते हैं तो यहाँ पे R स्क्वायर ही आने वाला है, no doubt। चलो ठीक है, this is going to be the Barts-Sawat's law, and but we know that tangent is always perpendicular to the radius, and that's why we can say that theta is always going to be 90, and that's why we can get that sin theta is always going to be equal to 1, so that we can get this equation modified as dB is equal to mu naught upon 4 pi into, what is this here, I into dl into sin theta, तो 1 बन गया। चलो ठीक है, तो I dl upon r square only, ये हमको मिल जाएगा आराम से। चलो ठीक है, so this is the contribution of this one such element in the magnetic induction produced at this point O here। Okay, what is the direction of this magnetic induction? Tell me, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। What is the direction of this magnetic induction produced at the point O due to the element current in the element A here, at A here? तो A पॉइंट पे जो एलिमेंट है, अप्लाई राइट हैंड रूल, कल इतना मैंने बताया था नहीं। देखो, अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमको थंब कौन से डायरेक्शन में अरेंज करना है? डीएल के डायरेक्शन में अरेंज करना है, करंट के डायरेक्शन में। और जब हम फिंगर्स ऐसे टर्न करेंगे तो हमको जो डायरेक्शन मिलेगा इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, तो वो रहेगा आउटवर्ड्स। सो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट विल बी आउटवर्ड्स, so we can call it as dB bar। Okay, so this dB bar will obviously in the outward direction। Okay, so we can just mention it here, this magnetic induction dB is directed outwards। Okay, and now if we consider the contribution of each and every element like this, तो यहाँ पे समझो एक दूसरा एलिमेंट हम एज्यूम करते हैं जो कि पॉइंट बी पे है। ठीक है, बी पॉइंट पे एक दूसरा एलिमेंट है और उसका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे अगर एज्यूम करते हैं तो उसके लिए भी आउटवर्ड डायरेक्शन ही आएगा उसका। और अगर और एक पॉइंट कंसिडर करते हैं सी, यहाँ पे सपोज डी पे या ई पे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, और इन सभी एलिमेंट्स का अगर कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर करते हैं तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द मैग्नेटिक इंडक्शंस ड्यू टू ऑल दिस एलिमेंट्स इन द कॉइल हियर। सो इसलिए फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो एक से कि द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, सो बी कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dB here। ठीक है, where dB is given by this equation 1। so if you put it here then we can get this as integration of mu naught upon 4 pi into I into dl upon r square। करेक्ट है, जो हमने यहाँ पे डाल दिया उसका वैल्यू, dB का जो वैल्यू है ना ये पूरा, तो वो यहाँ पे डाल दिया देखो। और उसमें से भी देखो कॉन्स्टेंट्स जो भी है तो वो बाहर लेके जाएंगे। तो कौन कौन कांस्टेंट है यहाँ पे बताओ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही कांस्टेंट, नो डाउट। इनटू आई है क्या कांस्टेंट, चेक करो। इफ वी गो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, करंट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑल दिस एलिमेंट्स आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कॉइल, सिंगल कॉइल which carries the current I, and that's why we can say that I is going to be constant। so take it out, I गया बाहर। चलो R है क्या कांस्टेंट, चेक करो। ये देखो, ये एलिमेंट का डिस्टेंस, ये एलिमेंट का डिस्टेंस, या ये एलिमेंट का डिस्टेंस, हर एक एलिमेंट का अगर डिस्टेंस ढूंढेंगे तो इट इज गोइंग टू बी द सेम ओनली, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट R इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर एवरी एलिमेंट। तो अगर हम एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज करेंगे तो R नहीं बदलने वाला, R इज गोइंग टू बी कांस्टेंट अगेन। सो वी कैन टेक इट आउट। ओके, तो R स्क्वायर को भी हम बाहर लेके गए, तो अंदर में कौन बचेगा? तो अंदर में सिर्फ dl बचेगा, देखो ठीक से। सो ओनली dl will be left inside, and now we can see dl is the length of one such element here।
एक एलिमेंट का लेंथ dl है, अगर ऐसा दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ऐसे हर एक एलिमेंट का अगर हम लेंथ ऐड करते चले जाएंगे तो टोटल लेंथ जो ऐड होगा तो वो रहेगा एक्चुअली circumference of this coil, correct है, which is given by 2 pi r. We'll see. So what can we say is the integration of dl is going to be same as the circumference of this coil. The total length of that coil, which is going to be actually equal to 2 pi r, correct? And if we replace it by that, then we can be able to find out the magnetic induction at that center, which is going to be actually mu naught upon 4 pi into I upon r square into 2 pi r. And here it is that this r will just get cancelled. देखो ठीक से यहाँ पे ये जो r है तो इस r को हम कैंसिल कर सकते हैं इधर से भी और इधर से भी, और इवन यहाँ पे 2 पाई जो है इस 2 पाई को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, लिविंग बिहाइंड 2 only in the denominator, and here will be left with r here, and then we can be able to write the next step here, that is, तो next step में क्या मिलेगा हमको, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा magnetic induction due to this whole coil at the center is actually going to be mu naught into I upon, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, upon 2 into r, that's all. देखो ठीक से, so this is actually going to be the magnetic induction due to a current carrying coil at its center. सेंटर पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है करंट कैरिंग कॉइल के, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स ऑन द करंट, नो डाउट, एंड दिस मैग्नेटिक इंडक्शन also depends inversely on the radius of that coil, which means that if we have the small coil and a bigger coil, and if we send the same current in both of these coils, then which coil will be able to produce more magnetic field at the center? Smaller one here. Why? Because its radius is small. When the radius is small, the magnetic induction is strong. वैसे भी हम समझ सकते हैं आराम से कि अगर रेडियस छोटा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा, और अगर रेडियस बड़ा करेंगे तो हर एक एलिमेंट दूर दूर चला जाएगा, जिसके कारण उतना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कॉइल, वो तो उसमें आ ही गया बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग इज टू नोट हियर इज दैट इफ सपोज वी हैव अ कॉइल ऑफ n टर्न्स, अगर सपोज हमारे पास एक n टर्न्स वाला कॉइल है, देखो ऐसा, जिसमें मान लो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से हमने बहुत सारे वाइंडिंग्स दिए हैं, वाइंडिंग्स, और हर एक का रेडियस सेम ही है, मान लो r ही है, हर एक का रेडियस सेम है। तो ऐसे अगर n टर्न्स है, सपोज n टर्न्स, तो उस केस में क्या होगा, देखो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन due to at the center of a coil of n turns will actually be given by B is equal to mu naught Ni upon 2R. That's it. So this is the formula for finding the coil of n turns. तो n turns क्यों, क्योंकि होता क्या है ना कि every turn will produce the same magnetic induction at the center, and hence the magnetic induction produced due to all these n turns will just get added up together, and hence it will become n times of the magnetic induction of a single turn. एक टर्न का जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है तो वो ऑब्वियसली हर एक टर्न उतना ही मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा करेगा, और इसकी वजह से n टर्न्स के वाले कॉइल की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन एक टर्न की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन के n टाइम्स ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये सीधी बात है। और यहाँ पे इस कॉइल के रेफरेंस में अगर देखा तो डायरेक्शन कौन सा होगा बताओ इस मैग्नेटिक इंडक्शन का? बिल्कुल, जो हर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वही इस n टर्न की वजह से भी होगा जरूर, और हर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन है वो कौन सा होता है, हमने अभी भी देखा, इट इज आउटवर्ड्स। देखो हमने थ्योरी में भी ऑलरेडी लिख के रखा है कि नहीं, द मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, एंड फॉर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट the magnetic induction will be directed outwards, and that's why the net magnetic induction is also going to be outwards, no doubt. So this direction can also be obtained by using right hand thumb rule,
अभी यहाँ पे राइट हैंड रूल जो है वो हमको अलग तरीके से अप्लाई करना है। देखो ठीक से, अभी तक हम अप्लाई कैसे करते थे राइट हैंड रूल को, तो हम अभी तक जो थंब है वो थंब को करंट के डायरेक्शन में अरेंज करते थे और हमको मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन मिलता था फिंगर्स के द्वारा। अभी हम उल्टा करेंगे। देखो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स अरेंज करो, टर्न योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर करंट। तो करंट के डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स अरेंज करेंगे ऐसे, तो एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब कौन सा डायरेक्शन देगा, आउटवर्ड्स। दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ current magnetic induction actually. So here we can see that the magnetic induction due to this current carrying coil is always directed outwards in this case, because it is the current in it is flowing in the anti-clockwise direction like this. तो जब करंट एंटी-क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन आउटवर्ड्स होता है, और जब करंट क्लॉकवाइज हुआ करता है, अगर करंट क्लॉकवाइज हो गया सपोज, तो उस केस में क्या होगा, हम अगर फिंगर्स टर्न करेंगे हमारे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली थंब किधर जाएगा, इनवर्ड्स जाएगा। इसलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इनवर्ड्स इन दैट केस व्हेन द करंट विल बी फ्लोइंग क्लॉकवाइज। ओके रिमेंबर, तो ये अच्छी तरह से याद रख लो। whenever the current is moving in the clockwise direction, we'll make two situations. When a current is flowing in the anti-clockwise direction, then the magnetic induction at the center will be outwards. It is expressed as the circle with the dot at the center. Okay, and whenever the current is flowing in a coil in the clockwise direction like this, तो देखो यहाँ पे इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स, which is expressed by the cross inside a circle. Remember, so this is the direction of magnetic induction inwards, and this is the direction of magnetic induction outwards. Remember, whenever the magnetic induction is directed outwards, it is always represented by a dot surrounded by a circle. Okay, and whenever the magnetic induction is directed inwards into the plane of the figure, then the symbol or the magnetic induction is represented by the cross surrounded by the circle. Remember, or alternatively we can also remember this by using right hand rule only. तो राइट हैंड रूल यूज करके ही हम उसको याद रख सकते हैं आराम से। अगर हमारे फिंगर्स जो है कर्ल फिंगर्स, अगर हम इस डायरेक्शन में अगर टर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली थंब क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाएगा। और अगर हम हमारे फिंगर्स ऐसे डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे, तो हमारा जो थंब है वो ऑब्वियसली इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक इंडक्शन का, ये हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं आराम से। यही डायरेक्शन जो है वो अगर आपको अगर ऐसे दूसरे डायग्राम के अंदर अगर दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो। देखो कैसे, सपोज ऐसा है, ये कॉइल है सपोज, और इस कॉइल के अंदर अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो हम हमारे फिंगर्स अरेंज करेंगे इस तरह से, जो ये वाला पार्ट फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए फिर जैसे करंट ऐसे फ्लो होता है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे, मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा होगा, इस तरफ होगा। लेकिन अगर करंट फ्लो होता है कॉइल में से, ये बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, तो करंट अगर ऐसे फ्लो होता है, ये देखो ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन, अगर हम करंट के डायरेक्शन में अगर हमारे फिंगर्स टर्न करेंगे तो हमको मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कैसा मिलेगा, लेफ्टवर्ड्स लाइक दिस। समझा क्या ठीक से? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस केस लाइक दिस। ओके, तो ये दोनों केसेस में हमको डायरेक्शन अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है अच्छी तरह से। इस फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है, एक छोटा मॉडिफिकेशन है, वो भी समझ कर लो ठीक से। अभी हम ये दूसरे स्क्रीन पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ठीक से, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है पहले तो ले लो फटाफट। दिस इज द डेरिवेशन विच मे बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन एग्जाम। 2 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछा जा सकता है। फाइंड डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ओके, ये उसका हेडिंग है। चलो ठीक है, सो नाउ लेट अस see the application. Okay, see here, if suppose we don't have a full coil but we only have a arc length, a part of it, मतलब पूरा coil तो है नहीं हमारे पास,
बट जस्ट एक पार्ट है। तो उस ऐसे आर्क के फॉर्म में जो कॉइल होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा सेंटर पे, वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? सपोज I is going to be the current flowing through this circular arc of this coil, and suppose that current enters from this end here and leaves along this end point here. ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है। तो बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसके ऊपर ही हम फोकस करने वाले हैं। फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट। और वी कैन जस्ट कंसिडर दैट द कॉइल may be complete, no doubt, but the full coil is not expressed here at all. तो फुल कॉइल जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। फुल कॉइल का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो ये कॉइल अगर पूरा होता तो ऐसा हम ड्रॉ करते थे उसको, बट यहाँ पे कोई कॉइल नहीं है। जो डॉटेड लाइन, डॉटेड जो पार्ट मैंने लिखा है ना, वहां पे कोई कॉइल नहीं है। कॉइल सिर्फ यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ही है, बिल्कुल। और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और इस कॉइल का अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हो तो वो ये है, सी उसको हम बोल सकते हैं या ओ बोल सकते हैं उसको। एंड एट दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर वी वांट टू फाइंड आउट द magnetic induction due to the current flowing through this circular arc of the coil, or we want to find out the magnetic induction at the center of a coil in the form of circular arc. ओके, आर्क के फॉर्म में जो कॉइल होता है, तो वो अगर मान लो थीटा इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इस थीटा एंगल सबटेंड करने वाले कॉइल आर्क आर्क के फॉर्म में जो कॉइल है जिसमें आई इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे पैदा होगा। अच्छा, डायरेक्शन तो हमको आराम से मिल सकता है यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इनवर्ड्स, नो डाउट। क्योंकि अगर राइट हैंड रूल यूज करो तो अगर हम हमारे फिंगर्स टर्न करेंगे करंट के डायरेक्शन में तो हमको इनवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगा आराम से। सो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन तो इनवर्ड्स है, नो डाउट। चलो ठीक है, बट हाउ मच इट विल बी, हाउ विल कैन फाइंड इट आउट? तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक हम यूज करेंगे कि अगर ये पूरा कॉइल जो है, अगर पूरा कॉइल होता तो कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बनता था, बताओ फटाफट। अगर सपोज पूरा कॉइल अगर होता तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनना था? मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू फुल कॉइल, अभी अभी हमने निकाला, देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r इतना बनना था कि नहीं? बिल्कुल। बट द फुल कॉइल करेस्पॉन्ड्स टू द एंगल 2 पाई, करेक्ट है? तो इसको हम एंगल 2 पाई बोल सकते हैं। पूरे कॉइल का एंगल कितना रहता है? 2 पाई होता है। तो इसलिए अगर ये जो म्यू नॉट आई अपॉन 2r is going to be proportional to 2 पाई, एंड देन अभी यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है इस सर्कुलर आर्क वाले कॉइल की वजह से, जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है उसको अगर हम B बोल देते हैं सपोज, so that B will actually be proportional to theta, correct है? And the constant of proportionality will get just cancelled when we'll take the ratio. So if we take this as a equation number 1 and this is as equation number 2 and just divide equation 2 by 1, what we get is, so हमको मिल जाएगा आराम से B upon mu naught I upon 2r as it is in the denominator, which is actually going to be equal to theta by 2 pi. समझा कैसे? This divided by this equal to this divided by this. तो इससे ये करने से हमको क्या मिल रहा है अभी यहाँ पे? B divided by mu naught upon 2r into theta by 2 pi. So if we shift this whole term in that side, ये जो mu naught I upon 2r जो है वो अगर हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा B is equal to theta upon 2 pi into mu naught I upon 2r.
So this is actually going to be the formula for finding the magnetic induction due to a current carrying coil in the form of an arc subtending angle theta at its center. ओके, ये फॉर्मूला बनता है. ओके, अगर ये थीटा जो है वो रेडियन में है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. याद रखो ठीक से, यहाँ पे कंडीशन क्या है, here the star mark मतलब conditions apply. The condition is that the theta should be in radian, remember. But if suppose this theta is not in radian but it is in degrees, then what can we apply the logic here? तो हम सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करेंगे कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये जो फुल कॉइल का जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इट करेस्पॉन्ड्स टू और प्रोपोर्शनल टू द 360 डिग्री एंगल which is the angle of a full circle. And if magnetic induction B produced due to a circular arc only, subtending angle theta will be corresponding to the angle theta itself. Then we can just take the ratio once again and get that B upon mu naught I upon 2r, which is going to be actually theta upon 360. And then we'll be able to put this value in that side. तो ये पूरा ब्रैकेट अगर हम उस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, B which is equal to theta upon 360 into ब्रैकेट में mu naught I upon 2r. That's it. So this will be actually the formula for finding the magnitude of magnetic induction due to a circular current carrying coil in the form of an arc subtending an angle theta at its center, where theta is given to be in degrees. Remember, यहाँ पे theta degrees में expected है, जबकि यहाँ पे रेडियन में expected है. तो अगर theta रेडियन में है तो ये 2 पाई भी रेडियन में ही लेने का, और अगर theta डिग्री में है तो 360 को भी डिग्री में लेने का. वो हम समझ सकते हैं आराम से. So this is actually all about the magnetic induction due to a circular current carrying coil. Full coil, the coil of n turns, and the coil of in the form of an circular arc subtending angles theta at the center. ये सारा पूरा हमने किया. ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनता है तो वो हमने आज के लेक्चर में देखा पूरा. बट इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see what happens in case of the magnetic induction due to a circular current carrying coil at a point along its axis. तो उस कोई किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे अगर कोई किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनता है वो हमको देखना है कल के लेक्चर में एज अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. सो तब तक लेकिन ये पूरा रिवाइज करो और पूरा ठीक से लर्न करके रखो ताकि अगला जो पार्ट है वो तुमको समझ में आए. और एक बात यहाँ पे है कि जो अगला पार्ट है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डेप्थ में हमको इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट लगने वाला है. ठीक है, तो एक्चुअली वैसे भी तुम्हारा इंटीग्रेशन जो है वो अभी चालू नहीं हुआ है डेरिवेटिव के इसमें मैथमेटिक्स के अंदर. तो थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट चलो फिर भी मैं ये ट्राई करूंगा कि इंटीग्रेशन जो है वो उसका जो कंसेप्ट है वो पहले क्लियर करके फिर वो उसका जो डेरिवेशन है आगे का डेरिवेशन वो हम करें. ठीक है, तो वो हम ट्राई करेंगे आराम से. चलो ठीक है, बट ये दो जो डेरिवेशन आज हमने किए वो ठीक से अभी रिवाइज करो आज ही. और टेस्ट ऑलरेडी आपके चल रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा टेस्ट लाइक